Hello children. Today we have to continue our exercise 9.2. I think we have done only two questions of this exercise. That is question number 1, question number 2 we have done in the last video. Okay, so now we have to start from question number 3. See, in question number 3 in AP the first term is 2. This is given to you. That is, first term means A is equal to 2 is given to you. The sum of first fifth term is 1/4 of the next 5 terms. For example, see, S5, okay, first 5 terms is equal to 1/4 of the sum of next 5 terms. That means sum from 6th to 10th term. Okay, this is the sum of next 5 terms. So this condition is given to you, and we have to show that the 20th term is minus 112. To show A20 is equals to minus 112. Okay, see, the sum of first of all we have to calculate S5. So S5 will be 5/2 2A plus, that is 5 minus 1, that is 4D. See, this is a general formula. Sn is equals to n by 2 2A plus n minus 1 into D. Okay, so here at a place of n we are putting 5. So 5, that is equals to 5/2 2A plus n minus 1. So your n is 5 minus 1, that would be 4 into D. This will come. Okay, so this is your equation number 1. Similarly, the sum of next 5 terms. So what I'm doing here, I'm calculating the 10th term, sum of 10 terms, that is 10/2 2A plus 9D. This will come. Okay, 10th term means at a place of n you have to put 10. So it would be 10/2 2A plus 9 into D. Fine. So the sum of next 5 term, that would be, that is from 6 to 10 term, that would be S10 minus S5. ठीक है, बट टोटल 10 टर्म में से फर्स्ट 10 टर्म में से मैं फर्स्ट 5 टर्म्स अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे नेक्स्ट 5 टर्म से तो का सम मिलेगा, है ना. तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 10/2 2A plus 9D minus 5/2 2A plus 4D. फाइन, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ S10 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ S5. ठीक है जी, सॉल्व करो से. ये बेटा आपका 5 आएगा, दिस विल वुड कम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 10A प्लस 45D माइनस अंदर इंसर्ट करते हैं ऐसे. So you will get 5A minus 10D. Okay, so simplify कर लेना इसे. 10A minus this, that would be 5A plus 35D. So this is the sum of next 5 terms. Okay, so according to question, the S5 is equal to 1/4 of 6 to 10 टर्म्स. तो 6 to 10 टर्म्स का सम हमें पता है, S5 भी हमें पता है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, दैट इज 5/2 2A plus 4D is equals to 1/4. This is your 5A plus 35D. Got it? So
what I'm doing now, I'm just inserting this. So 5 by 2 into this, that you will get 5a plus 10d is equals to 1 by 4 5a plus 35d. It will remain the same. Now इस 4 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है. तो आई एम डूइंग ऑन द नेक्स्ट पेज. See, so you will get 5 into 4, that would be 20a plus 40d is equals to 5a plus 35d. So this 5a will come on this side, it would be 15a, 35d minus 40d. So you will get minus 5d, and here 15a will come. So a is equals to 3a is equals to minus d is 5 से cut कर दो, 5 1 the 5, 5 3 the, and now I'm putting the value of a. Your a is 2, so your d will come beta minus 6. Okay, so if your d is minus 6 and your a is 2, so you have to calculate a20. So a20 will be a plus 20 minus 1 into d. So here we are applying this formula, an is equals to a plus n minus 1 into d. Okay, so it would be a is 2, it would be 19 into your d is minus 6. So your answer is minus 112, which you have to prove. Okay, so this is how you can solve this question. Okay, so note it down, this is an important question. Now the next question is question number 4. And question number 4, the sequence is given to you in which your first term is minus 6 and your d is minus this minus minus 6. So minus 11 by 2 plus 6, so you will get 1 by 2. LCM ले लेना, 12 आएगा बेटा, 12 minus 11 that would be 1 by 2. Okay, so ये हमने d भी निकाल लिया और आपको s given है, sn is given to you minus 25. तो सिंपली sn का फॉर्मूला डाल देना, sn is equals to n by 2 2a plus n minus में 1 into में d. आपको a पता है, a पता है, d पता है, sn पता है, n निकाल लेना. This is your homework. Okay, so question number 4 you have to do. Now I am solving question number 5. See, in an AP the pth term is 1 by q. See, if you talk about nth term, so your an is equals to a plus n minus में 1 into d. This is a general formula. तो यहाँ पे बात कर रहा है pth term, तो जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे p डाल दो. This one, and your pth term is equals to 1 by q. So at a place of this I am writing 1 by q. Okay, so this is your equation number 1. Similarly your qth term क्या हो जाएगी बेटा, जहाँ पे n था वहाँ पे आप q लिख दो, तो q a plus q minus 1 into d. So this your qth term is 1 by p. ये आ गया. This is equation number 2. So elimination method पढ़ा हुआ है आप लोगों ने. Apply this method here and you will get the value of a and d. ठीक है, a और d की हम वैल्यू निकालेंगे by using elimination method. So करते हैं. This is your 1 by q. I'm writing the first equation, a plus p minus 1 into d, and 1 by p is equals to a plus q minus 1 into d. Okay, so yes, a आपका कट जाएगा. Again you have to change sign. Here you have to change sign. So when you subtract these two, you will get 1 by q minus 1 by p, and similarly here I am inserting d, so you will get p d minus d, and similarly minus qd and plus d will come. So this d and d will cancel out. Okay, so note it down. Next part I am solving. Wait,
here I'm solving. So when you will take LCM, you will get P minus Q over PQ. Similarly here you will take D common, so you will get P minus Q. Okay, this P minus Q and this P minus Q will cancel out, and your D will be 1 by PQ. Got it? D आपका 1 by PQ आ रहा है. Put this value in equation number 1. Sorry. When you put this value of D in equation number 1, your A will also come out 1 by PQ. तो बेटा A और D आपको मिल गया. ठीक है. A और D आपको मिल गया. आपको क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यूथ टर्म. आपको सम ऑफ पी क्यू टर्म निकालना है. तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला? इज पी क्यू बाई 2. जहां पे एन आ रहा था वहां पे आपने पी क्यू पुट कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. 2a प्लस, यहाँ पे n आता है n-1 ना, तो n की जगह पे लिखोगे पी क्यू -1 इंटू डी. तो बस इसमें आप वैल्यू डाल दो a और d की. डी की जगह पे p बाई क्यू. पी क्यू से पी क्यू कट गया. 1/2 बेटा बाहर, और यहाँ पे आपका अंदर आएगा पी क्यू +1. सो दिस इज द सम ऑफ पी क्यू टर्म. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, सो प्लीज note it down. So this is how you can solve question number 5 of this exercise. Simply here we are just putting the value of a and d, and we are just doing a calculation, taking LCM, and finally you will get this answer. This is which you have to prove. Okay, see, in question number 6, sequence is given to you. So your first term is 25 from the sequence. Your d will be 22 minus 25, that would be -3, and your an, not an, the sum is given. So Sn is given to you, which is 116. Okay, so you have to find the last term. Last term means you have to calculate an. Okay, so first of all we are applying this formula. Sn is equals to n by 2, 2a plus n-1 into d. So this is your formula of Sn. Your Sn would be 116. Your n will remain n. At a place of a I am putting 25. So 2 into 25, that would be 50, plus n-1, and at a place of d I am putting -3. So इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ. 12, 3, 2. It would be 232. n 50 minus 3n plus 3. इस -3 को से मल्टीप्लाई करना, you will get this. ठीक है. n 53 minus 3n 232. So you will get 53n minus 3n square 232. The 3n will come on this side. 3n square minus 53n plus 232, that is equals to 0. Got it? So ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा. So you have to split the middle term here. Fine. तो और डी वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन. ठीक है, यहाँ से वैल्यू ऑफ एन मिलेगी. एन की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला डालना है, a प्लस n-1 इंटू में डी. इसमें
आपने एन की वैल्यू डाल देना, ए की वैल्यू डाल देना, डी की वैल्यू डाल देना। जो एन यहाँ से आपको मिलेगा उसमें आप इस वाले फॉर्मूले में ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू डाल देना, आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose kth term is given. See, your kth term is given, which is 5k plus 1. Okay, at a place of k you have to put 1. तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ k के प्लेस में, मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी बेटा 5 into 1 plus 1, that would be 6. k के प्लेस में 2 पुट कर रहा हूँ, 5 into 2 plus 1, that would be 11. 3 पुट कर रहा हूँ k के प्लेस पर, 5 into 3 plus 1, तो it would be 16. तो आपको जो AP मिल रही है वो 6, 11 and 16 and so on, ये AP मिल रही है हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सी, A आपका हो गया बच्चे 6, D आपका हो गया 5, 11 माइनस 6 कर दोगे D मिल जाएगा। ठीक है, n का n रहने देना, Sn का फॉर्मूला डाल दो, ये वाला। ठीक है, इसमें A पता है, D पता है, n की फॉर्म में आंसर आएगा। A और D की वैल्यू डाल देना, कैलकुलेट कर देना, n की फॉर्म में ही आंसर आएगा, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, yes, similarly question number 8c. In question number 8, Sn is given to you, sum of n term is given, which is Pn plus Qn square, this is given to you. ठीक है, and you have to find out the common difference. See, at a place of n I am putting 1, so you will get the sum of one term, तो ये मिलेगा आपको, that is P plus Q. S1 is also equals to your first term of AP, sum of one term, that would be A1. okay, तो S1 आपका A1 होता है उस केस में। 2 पुट करो, 2 पुट करा हमने यहाँ पर, 2P plus 4Q आ गया बेटा, इसमें हमने पुट करा, एट ए प्लेस ऑफ n 2 पुट कर रहे हैं हम, तो 2A plus 4Q आ गया। सो ये आपका होता है S2। तो आपको सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, A2 जो निकालोगे आप, दैट इज योर S2 माइनस S1, सेकेंड टर्म मिलती है इससे। ठीक है, ये सम ऑफ 2 टर्म्स है ना, अगर मैं फर्स्ट टर्म इसमें माइनस कर दूँ तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी, A2 मिल जाएगा। सो S2 इज 2P plus 4Q and as your S1 is P plus Q, so minus P and minus Q will come, ये दोनों माइनस रहेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है बेटा P plus 3Q। तो ये आपकी आ गई सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म मिल गई थी आपको, ये आपको सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, D A2 माइनस A1 करके, A2 आपका है P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, P से P कट गया एंड 2Q। सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 9 and 10, both are very important, so mark them important. Okay, now see, in question number 9, the sum of n terms of two APs are in the ratio, okay, ratio is given 5n plus 4, 9n plus 4. Find the ratio of their 18th term. तो हम फर्स्ट सम मान लेते हैं Sn, दैट इज योर n बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और एक सम मैं मान लेता हूँ S डैश n, दैट वुड बी n बाई 2, 2A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो, और आप 1-1 करके भी ले सकते हो बेटा, A1 D1 ऐसे भी करके ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डैश डैश यूज करा है, आप उसको A1 D1 लेके कर सकते हो, A2 D2 लेके भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग सिंबलाइज करना है, दो अलग अलग एपीज है, तो इनका रेशियो बेटा हमें गिवन है Sn S डैश n, और इनका रेशियो हमें गिवन है, दैट इज 5
9n+4 over 9n+6। ठीक है, Sn की मैं वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ से, दैट इज n/2 2a plus n-1 into d, n/2 2a dash plus n-1 into d dash, that is equals to 5n+4 9n+6। ठीक है, ये मैंने Sn और S'(n) की मैंने वैल्यू डाल ली है, इस पूरा कट गया। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू टेक 2 एज कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट। 2 और कॉमन ले लोगे तो आपका यहाँ पे बचेगा a प्लस n-1/2 इंटू डी। ऐसे ही नीचे 2 कॉमन ले लोगे, a डैश प्लस n-1/2 d डैश, दैट इज इक्वल टू 5n+4 ओवर 9n+6। ठीक है, अब आपको रेशियो क्या था चाहिए था, 18 टर्म्स का रेशियो ना, तो a प्लस ये पूरा 17 आ जाए। n-1 को मैं क्या कर रहा हूँ, n-1/2 इसको मैं 18 पुट कर रहा हूँ, 17 सॉरी, सी जो n-1/2 इसको मैं 17 पुट कर रहा हूँ। सी क्यों 17 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका हो जाएगा a प्लस 17d, तो a प्लस 17d आपका 18 टर्म ही तो होता है ना। तो इसको सॉल्व करोगे आपको n मिलेगा यहाँ पे 35, तो n 35 पुट कर दो बेटा इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर n 35 पुट करो, देखो क्या मिलेगा, 2 से 2 कट गया, a प्लस 35 पुट करोगे आपका आएगा 17d, नीचे आपका आएगा a डैश प्लस 17d डैश, 35 पुट करो बेटा यहाँ पर, 5 इंटू 35 प्लस 4, 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये 18 टर्म ही तो होता है, a18, ये आपका a डैश 18 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे इसे, ठीक है, तो आपका सॉल्व करने पे 18 ये a डैश 18 का रेशियो ये आ रहा है 179/321। ओके चिल्ड्रन, हाँ, so this is how you can solve question number 9 which was very important question। ठीक है, तो अच्छे से इसको सॉल्व करो, कोई डाउट आ रहा है दोबारा से वीडियो देखो, तब भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आस्क, यू कैन आस्क। ओके, now see, this is the last question of our class। okay, if the sum of first pth term, so sum of pth term would be sp p/2 2a plus p-1 into d, ये होता है ना pth टर्म, एंड जैसे nth टर्म था, जहां पे n आ रहा है वहां पे p लिख दो आप। ठीक है, ये दिस इज द pth टर्म एंड दिस इज द qth टर्म, तो सम ऑफ qth टर्म वुड बी 2a plus q-1 into d। ओके, द सम ऑफ pth टर्म, द सम ऑफ qth टर्म दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं बेटा, sp इज इक्वल टू sq, दोनों को इक्वल करो, p/2 2a plus pd minus d, that is equal to q/2 2a plus qd minus d। इस d को मैंने अंदर इंसर्ट कर दिया दोनों में ना, 2 से 2 कट गया। ठीक है, p को भी अंदर इंसर्ट करो, 2ap प्लस p² d माइनस pd इज इक्वल टू 2aq q² d माइनस qd। आप सबको इधर ले आओ, दिस इज योर 2ap माइनस 2aq प्लस p² d माइनस q² d माइनस pd प्लस qd इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कॉमन ले लो, 2a कॉमन ले लो बेटा, दिस वुड बी p माइनस q
एंड व्हेन यू टेक डी एस कॉमन ना, तो यू विल गेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस डी ले लो कॉमन, ये आ गया आपका, ठीक है, याद देगा ना। अब p माइनस क्यू, अब टोटल में से कॉमन ले लो बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2a प्लस डी, इसको आप लिख सकते हो p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू वाला पार्ट बचेगा यहाँ पर, माइनस डी ओनली, दैट इज इक्वल टू 0। ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनली बचेगा 2a प्लस डी, वी आर टेकिंग कॉमन, सो p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। अभी कह रहे हैं कि सम ऑफ p प्लस क्यू एट सम, यानी कि आपको s प्लस क्यू ये निकालना है आपने, तो n की जगह पे p प्लस क्यू लिख दो, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा आपका फॉर्मूला। अब एज यू कैन सी ये आपका क्या है, 0 आ रहा है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ऊपर 0 निकाला है ना इक्वेशन नंबर 1 में, देखो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हेन यू विल पुट दिस वैल्यू हियर यू विल गेट 0, सो आपका जो एस सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म जो आ रहा है दैट वुड बी 0, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, ओके। यही तक ही करते हैं बेटा अभी, ठीक है। अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो लास्ट में हमने क्वेश्चन करें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2-3 टाइम सॉल्व करोगे तभी एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे आप लोग। सो सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सो साथ साथ वीडियो देखते जाओ, क्योंकि एंड में फिर देखोगे, क्योंकि एंड में तो देखना पड़ेगा आपको एग्जाम टाइम में, तो बेटर है कि साथ साथ देखते जाओगे तो अच्छी से तैयारी हो जाएगी। कोई डाउट्स आएगा तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए साथ साथ वीडियो देखते जाओ। ओके, बाय बाय।